Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Student, this video is about class 10th. So as you know, we are discussing about MS Word in our session. In my previous video, I discussed with you the insert tab. Okay, the entire insert tab element in my previous video. In this video, I am going to discuss you the page layout tab. Okay, beta. So without wasting time, let's get started and understand what are the tools available on the page layout tab. So before to go ahead, I just want to share one thing to all of you beta. You have to know about the tool and where it is established or where it is placed. Okay? So you have to know the functionality, you have to know the position where the tools are present in each tabs. Okay, and the steps if you want to change the theme of a text. No, you have to know the steps how to change the theme. Okay, okay beta. Now if you want to add header and footer, so you have to know the steps how to add header and footer in your document. Okay, so it is very important to all of you. Okay, so let's get started with the page layout tab. Here, this is my page layout tab. So if I want to change some the page setup utility, so first I need to add some text here. Okay, so for that I'm going to use my inbuilt formula, that is equal to, I'm going to change the size of this page. So that is in page layout equal to RAND in bracket 5 comma 5. Okay, and then enter. So here you can see how many page are there. Only two pages. Now in the bottom side you can see here only two pages are there. Okay beta. So let's get started the utility of the page setup. Okay, page setup tools. Now first of all, margin. Okay, so these are the themes. Before to go to the page setup, let's understand the themes. Okay, so here I select the entire text and select any theme. You can, once you click any theme, these are the inbuilt theme presented here. Okay, you just click it here and apply this theme on your document, nothing else. Okay, so there's a theme, there's a color, font, effect. These are the inbuilt. Okay, so there's no need to know about the more the things here. Let comes, I just want to change my theme here. Suppose here I'm going to change my theme like this. I want this theme here in my document. Select the entire text and increase the size, font size. Okay, now and the alignment, that is justify. Clear beta? Now go to the page setup and here you can set the margin. Now here you can set the margin here. This is the ruler tab, left indentation. You can set the margin, right? Suppose this is my tab, my paragraph, and here reset the theme template. Control A and click here. Reset the theme from template. Click. This is my reset theme, and you just select the entire thing. You can see the margin here. Just drag and drop. Now the text is shifted in the left side, right? Similarly, your text would be shifted at right side if you place your margin here like this. Just drag and drop, right? Similarly, on the right hand side also, see, you can change your margin, right? Now ये margin था बेटा आपका. Next, you can see the
template here also, right? Now select the entire text. These are some margin. Suppose अगर मैं नैरो किया तो देखिए आपका जो टेक्स्ट था वो शिफ्ट हो गया अपर साइड में, ठीक है। नॉर्मल किया, शिफ्ट नीचे आ गया। सिमिलरली मॉडरेट, ठीक है, वाइट, अलग अलग आपके क्या है बेटा, यहाँ पर मार्जिन है। तुमने नॉर्मल कर लिया तो ये नॉर्मल हमारा मार्जिन दिख रहा है। सपोज अगर मैंने यहाँ से मॉडरेट किया या फिर वाइट किया, ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको इस तरह का टेक्स्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से इसको नॉर्मल कर लिया, मिरर्ड, ठीक है, तो मिरर्ड भी मार्जिन था आपका, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से आपका मिरर्ड देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे आपके मार्जिन नॉर्मल में आपको इस तरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या क्या मार्जिन मिल रहा है यहाँ पे, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्री डिफाइंड या इनबिल्ट हमारे क्या है मार्जिन है, ठीक है। अलग अलग इनकी साइज है, वैल्यूज है, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम का हमारा, ठीक है। मार्जिन में वो 4 एट्रीब्यूट क्या होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मार्जिन सेट करनी है तो इस पेज के, ये आपको पेज दिख रहा है, पेज का लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, ठीक है, से आपका टेक्स्ट की दूरी कितनी होगी, यानी कि यहां से लेकर, ठीक है, जो डिस्टेंस है, ठीक है, चारों पेज, चारों तरफ से टेक्स्ट कितने कितने डिस्टेंस पर होगा, ठीक है, वो आपको डिसाइड करना, किससे, मार्जिन से डिसाइड करते हैं। मार्जिन में 4 आपके एट्रीब्यूट होते हैं, टॉप, ठीक है, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, ठीक। जैसे मैंने यहां से नॉर्मल किया या फिर नैरो कर दिया तो देखो आपको 2 पेज में आपका टेक्स्ट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहां से हमने क्या किया, मॉडरेट कर दिया, ठीक है, तो अभी भी देखिए 2 पेज में ही शिफ्टेड है, ठीक है। यहां से अगर मैं इसे वाइड किया हमने तो देखिए 3 पेज हमारा शिफ्ट हो गया। तो आप ऐसे भी अपने अपने टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। नॉर्मल में देखिए आपको 3 पेज मिल रहे हैं और जैसे आपने इसको नैरो किया, अब 2 पेज में सारा का सारा टेक्स्ट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। यहाँ पे पैराग्राफ कितने हैं, तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 4 एंड 5 पैराग्राफ आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से बेटा आपको ये याद रखना है कि में 4 एट्रीब्यूट है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। मार्जिन में 4 एट्रीब्यूट आपको ये हमेशा याद रखने हैं। अब इसी के बाद हम जाते हैं ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन में आपको 2 चीजें मिलती है, पोर्ट्रेट, ठीक है, और ये लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट कैसा होता है आपको देखने को मिल रहा है, देखिए आपको ये पोर्ट्रेट में है, ठीक है, ये हमारे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, ठीक है, जो अभी इस समय करंट हमारा व्यू है। अब अगर लैंडस्केप में करना है तो पेज को हॉरिजॉन्टली मूव कर देना, ये देखिए इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा पेज लैंडस्केप में हो गया। तो 2 ओरिएंटेशन आपको देखने को मिलेंगे, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, क्लियर। अब यहाँ बेटा आपका साइज है, लेटर है, ठीक है, टेबल्ड है, लीगल है, स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, A3 A4। A4 आपका क्या है, आपका स्टैंडर्ड पेज का साइज होता है। स्टैंडर्ड पेज का जो प्रिंट आउट पेज, प्रिंटर का जो पेज होता है वो A4 साइज का जो आपका पेज होता है, ठीक है। A3 पेज का जो आपके पैम्पलेट वगैरह होते हैं या लिफलेट वगैरह होते हैं उसके लिए हम A3 साइज, देखिए यहाँ पे साइज क्या हो गया, पेज का बढ़ गया, ठीक है। अगर आपने पेज A4 किया है तो आपको क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे लेटर है, ठीक है, A4 और लेटर में देखिए माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे 8.5, यहाँ पे देखिए क्या 8.27 है, ठीक, इंटू 11.69। सिमिलरली यहाँ पे 8.5 यानी कि लेटर, ठीक है, और आपका जैसे कि लीगल हो गया, ठीक, ये हमारे कौन से पेज है, प्रिंटर के पेज की तरह ही हमारे पास, ठीक है। A5 हमारा नॉर्मल छोटा पेज होता है, ठीक है। A3 हमारा लेफलेट के पेज होंगे। देखो A3 की जो वैल्यू है वो चेंज है, यहाँ पे 8 है, लेंथ एंड ब्रेथ कितना है, 16 है ना, यहाँ पे 11 एंड 16 ब्रेथ है। तो ये हमारे क्या डिफरेंट साइज है पेज के, तो आप इसको सेट कर सकते हैं प्रिंटर के अकॉर्डिंगली। जैसे अगर आपने साइज को A3 कर दिया तो ये देखिए A3 पेज का ये पूरा कंटेंट एक पेज में आ गया, ठीक है। तो इसके लिए आपको नॉर्मल, अब ये जो इसका जो प्रिंट आउट होगा वो एक पेज में निकलेगा, लेकिन किस पेज पर, A3 पेज पे निकलेगा। इसका प्रिंटर अलग होगा बेटा, ठीक है, जो पेज का साइज होगा वो अलग होगा। जैसे मैं यहाँ पे मैंने A4 किया तो A4 में देखिए 2 पेज में आपका कंटेंट शिफ्ट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टाइप है वो है कॉलम। अब कॉलम में देखना है हमें क्या देखना है, हमें कॉलम में कि पूरा का पूरा टेक्स्ट
कितने कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉलम में गए, यहाँ पे देखिए 1 कॉलम में है, अभी देखिए हमारा एक ही कॉलम है। अब अगर मैं 2 कॉलम में किया तो देखिए आपको 2 कॉलम में, आपको जैसे न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है न्यूज़, यहाँ देखिए एक पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है, होम टैब, और दूसरा पैराग्राफ आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, और फिर ये कंटिन्यू यहाँ पे किया, यहाँ से यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप वापस से जा सकते हैं, देख सकते हैं कि पैराग्राफ आपका कहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो वापस हम जाते हैं पैराग्राफ में 1 पे करते हैं और यहाँ से पैराग्राफ को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे पैराग्राफ को ऑन किया, देखिए पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ये पैराग्राफ दूसरा कंप्लीट हुआ, उसमें से तीसरा पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हुआ, चौथा पैराग्राफ यहाँ पे, पांचवा पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से सारे पैराग्राफ आपने ऑन कर लिया। अब आपको देखना है यहाँ पे पैराग्राफ कहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कहाँ पे स्टॉप हो रहा है। तो पेज लेआउट में जाएंगे, कॉलम, कॉलम में 2 किया, देखिए आपका पहला पैराग्राफ यहाँ पे ओपन हुआ, स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। दूसरा कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, और कंप्लीट कहाँ पे हुआ, ये देखिए ऊपर गया यहाँ पे। थर्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक उसी तरह से फोर्थ स्टार्ट हुआ यहाँ से, यहाँ पे क्लोज हुआ, फिफ्थ यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। इस तरह से आपको 3 अगर कॉलम चाहिए, यहाँ से 3 कॉलम में चाहिए, तो आपको देखिए पैराग्राफ, पूरे का पूरा पैराग्राफ 3 कॉलम में डिवाइड हो गया आपका टेक्स्ट। ठीक है बेटा, ऐसे आप यहाँ से कॉमन कम कर सकते हैं। मोर कॉलम में यहाँ पे जा सकते हैं, 1 2 नंबर ऑफ कॉलम यहाँ से डिसाइड कर, 1 2 3 4 कितना भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम जाते हैं इसको 1 पैराग्राफ 1 कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कहाँ से जाएंगे, सेलेक्ट ए करेंगे और यहाँ से कॉलम में जाकर 1 कॉलम में कर दिया। देखिए पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज हुआ, पैराग्राफ यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्शन ब्रेक का, ठीक है बेटा। तो जैसे हमें क्लिक करेंगे ब्रेक पर, तो यहाँ पे पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक। अब ये सेक्शन ब्रेक, पेज ब्रेक क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं हम चाहते हैं कि जो भी हम अपने इस पैराग्राफ में, यानी कि मान लेते हैं हम 2 पैराग्राफ मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है, 2 पेज हमारे पास है, ठीक, 2 पेज हमारे पास है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले पेज ब्रेक किया। हम चाहते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट जो कंटेंट, तीसरा पैराग्राफ हमारे दूसरे पेज से, पहले पेज में नहीं दूसरे पेज से स्टार्ट हो, ठीक है। मैंने क्या बोला कि दूसरा जो पैराग्राफ है ये वाला, ये हमारे दूसरे पेज से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे जाकर हम क्या कर देंगे, पेज ब्रेक। तो जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट होगा, जो कंटिन्यूस कंटेंट होगा, हमारे नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होगा। ये देखिए अब जो यहाँ से देखिए क्या हो गया, पेज ब्रेक हुआ, यहाँ से हमको दिखा रहा है ना, पेज ब्रेक हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद का जो नेक्स्ट पेज टेक्स्ट होंगे, पैराग्राफ होगा, वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होगा। ठीक उसी तरह से मैंने यहाँ पे गए, यहाँ पर भी मैंने क्या बोला बेटा, पेज ब्रेक। देखिए यहाँ से पेज ब्रेक लग गया और इसके बाद कंटेंट आपके नेक्स्ट पेज में चला गया। तो 2 जगह मैंने क्या लगाया बेटा, पेज ब्रेक लगाया। अब पेज ब्रेक तो लगा लिया, अब मुझे कुछ अप्लाई करना है। सपोज मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है अपने, ठीक है, पेज ब्रेक। अभी मैं सेक्शन ब्रेक बताता हूँ, सेक्शन ब्रेक अभी आएगा, मैं आपको सेक्शन ब्रेक बताऊंगा, ठीक है, सेक्शन ब्रेक क्या होता है। तो अब इसके बाद कॉलम ब्रेक है। कॉलम ब्रेक कहां से करेंगे, समझते हैं इसको, कॉलम ब्रेक कैसे होगा। पेज ब्रेक के बाद क्या करना है, कॉलम ब्रेक करना है। तो कैसे कॉलम ब्रेक कैसे लगाएंगे समझिएगा इसको। इसके लिए हमको कॉलम बनाना पड़ेगा पहले, है ना। तो कंट्रोल सेलेक्ट किया और हमारे जैसे पहले की तरह था डॉक्यूमेंट, उसे कर लेते, कंट्रोल जेड, ठीक है। सेलेक्ट ए किया, इसको कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं, 2 कॉलम में, ठीक है। हम चाहते हैं यहां से कि अब यहां से कॉलम नेक्स्ट वाले में यहां से ना स्टार्ट हो, यहां नहीं, दूसरे कॉलम से स्टार्ट हो, ठीक है, यहां से, ठीक है, दूसरा कॉलम। या हम चाहते हैं कि जो कॉलम तीसरा वाला वो यहां से स्टार्ट ना होकर इसके बाद नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ब्रेक में जाएंगे, यहाँ पे कॉलम ब्रेक किया। तो अब आप देखेंगे यहाँ से कॉलम ब्रेक लग गया, ठीक है। तो 2 चीजें आपको मैंने बताई, पेज ब्रेक एंड कॉलम ब्रेक। अगर मैंने आपको कॉलम ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके पूरे पैराग्राफ को कॉलम में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे कॉलम ब्रेक। फिर से एक बार करते हैं। देखिए अभी मेरा कॉलम है, 2 कॉलम यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है,
और तीसरा कॉलम जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो। कहाँ पे जाएंगे? कॉलम ब्रेक से जाएंगे। देखिए दूसरा पेज से स्टार्ट हो, 2 ही पेज हमारे पास, तीसरा देखो 3 पेज आ गए यहाँ पे। हम चाहते हैं जो ये वाला कॉलम है, ये वाला है, ये भी कहाँ से? नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो, तो कहाँ पे जाएंगे? कॉलम ब्रेक से। देखिए कॉलम ब्रेक से हमारा ये वाला स्टेप। क्लियर बेटा? चलिए अब वापस से अपने टेक्स्ट को कर देते हैं। तो हमने पेज ब्रेक देखा और कॉलम ब्रेक देखा, ठीक है? पेज ब्रेक देखा और कॉलम ब्रेक देखा हमने। अब इसके बाद जो सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन ब्रेक है। अब पेज ब्रेक कॉलम ब्रेक में पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। चलिए कंट्रोल जेड, ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ है। अब अगर मैंने, ठीक है, अपने पहले वाले पेज पे, मान लेते हैं हम अपने पहले पेज पे जाते हैं, ये हमारा पहला पेज है, ठीक है, और इसका जो मार्जिन था A4 साइज से लेटर कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मल में हमको 3 पेज शायद मिले। ये हमारा तीसरा पेज है, ठीक। अब यहां से पैराग्राफ हम हटा देते हैं, कंट्रोल A करके पैराग्राफ क्लोज करते हैं। हमको नहीं चाहिए पैराग्राफ अभी, ठीक है ना। इंडिकेशन जो था, पैराग्राफ का इंडिकेटर था, वो हटा दिया हमने। अब हम जा रहे हैं अपने पहले वाले पेज पे। पहले वाले पेज पर क्या करना है? देखो 3 पेज हैं, पहले वाले पेज पर हम जा रहे हैं बॉर्डर लगाने, पेज बॉर्डर, बॉक्स या बॉक्स की जगह नन किया हमने, बॉक्स करते हैं, यहां से ये बॉर्डर हमको अप्लाई करना पहले वाले में, ठीक है ना। ओके किया। अरे हुआ क्या, हमने पहले वाले पे अप्लाई किया लेकिन सभी पे हो गया। अगर हमें एक डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर रहे हैं, अपने एक डॉक्यूमेंट के एक पेज पे अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? सभी पे अप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे पेज बॉर्डर पे गए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा होल डॉक्यूमेंट और दिस सेक्शन ओनली। अब देखो सेक्शन यहाँ पे आ गया ना। सेक्शन से क्या करते हैं बेटा, हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट में हर एक पेज को अलग अलग फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, ठीक है। सेक्शन से क्या होगा, हमारे अलग अलग पेज पर भी हम अलग अलग फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी होल डॉक्यूमेंट है, कैसे करेंगे? पहले सेक्शन डिवाइड करना पड़ेगा, कैंसिल करते हैं। अब जो बॉर्डर है इसको हटाते हैं, नन कर देते हैं, ओके कर दिया, सभी हट गया, ठीक है। सबसे पहले हमें सेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। सेक्शन ब्रेक कैसे करेंगे, चलिए करके देखते हैं। यहां से हम चाहते हैं सेक्शन ब्रेक हो, तो ब्रेक में जाएंगे। कहां से? हम चाहते हैं कि हमारा जो ये पहला पेज है यहां से सेक्शन ब्रेक लग जाए। यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए लग तो गया है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। कैसे दिखेगा? अगर आप पैराग्राफ यहाँ से अलाउ करेंगे, पैराग्राफ को क्या करेंगे, ऑन कर देंगे, तो अभी आप देखेंगे जाकर, यहाँ से देखिए सेक्शन ब्रेक लग गया। अब सेक्शन ब्रेक जैसे लगा, ठीक है, यहाँ से पैराग्राफ क्लोज हुआ, यहाँ से भी सेक्शन ब्रेक चाहिए आपको, तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, पेज लेआउट में, और यहाँ से सेक्शन ब्रेक पे क्लिक करना। अब देखिए यहाँ से भी सेक्शन ब्रेक लग गया, ये भी हमारा क्या सेक्शन ब्रेक है, ठीक है बेटा। ठीक, सेक्शन ब्रेक यहाँ पर भी लगा है। और अब हम चाहते हैं कि अपने सिर्फ खाली इस सेक्शन में ही फॉर्मेटिंग अप्लाई करें, ठीक है। तो पेज बॉर्डर पे जाते हैं, देखिए हमारा कर्सर कहाँ पे, पहले वाले पेज पर है। पेज बॉर्डर पे गए, आउटलाइन, और यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ आउटलाइन दिया, और होल डॉक्यूमेंट की जगह मैंने क्या लिखा, दिस सेक्शन, ओके। सो अभी आप देखेंगे कि जो मेरा अप्लाई हुआ है बॉर्डर,
सिर्फ खाली एक पेज पर अप्लाई हुआ है, एक सेक्शन पर अप्लाई हुआ है। सेक्शन से हम क्या कर सकते हैं बेटा, सेक्शन से हम किसी भी पर्टिकुलर पेज पर, स्पेसिफिक पेज पर, अलग अलग पेज पर अलग अलग फॉर्मेटिंग हम दे सकते हैं। हम यहाँ चाहते हैं यहाँ पे अलग कुछ देना, अगर इसका कंटेंट यहाँ पे नहीं गया वो सिर्फ इस पर ही अप्लाई होगा। देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम और पेज बॉर्डर पे जाते हैं, बॉक्स में जाते हैं, यहाँ से हमने कुछ अलग ले लिया, ठीक है। तो देखिए आपका कुछ कंटेंट यहाँ से यहाँ चला गया है, इस वजह से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिले, सारे सेक्शन पे सारे, अच्छा मैंने होल डॉक्यूमेंट कर दिया, ओके ठीक है। कंट्रोल जेड, यहाँ पे क्लिक करते हैं, पेज बॉर्डर पे जाते हैं और यहाँ पर क्या होगा, ओके किया, सेक्शन, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखिए यहाँ पे अलग हो गया। अब देखिए ये सेक्शन अलग था हमारा पेज का, अब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों अलग अलग डॉक्यूमेंट पे हमारा फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पर मुझे कुछ फॉर्मेटिंग चाहिए, इस पे फॉर्मेटिंग कुछ अलग हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे पेज को सिलेक्ट किया और इसका कलर क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं, सिंपल सा, और कुछ नहीं करते बेटा, समझने के लिए, ठीक है। हमने यहाँ पे कलर इसका रेड कर लिया, ठीक है। और इस सेक्शन का कलर क्या कर लिया बेटा, इसको हमने ब्लू कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं ताकि आपको सारे सेक्शन के वैल्यू हमको आपको दिखे, ठीक है। और यहाँ पर इस पेज के जो पैराग्राफ है इसको अलग से हम कलर कर लेते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से कुछ हम ऑरेंज ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ कलर तो आप अलग अलग, येलो लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। इस पूरे के पूरे पेज को हमने क्या कर लिया, इसको ग्रीन कर लिया, ठीक। अब समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलग फॉर्मेटिंग है, इस पे अलग फॉर्मेटिंग, इस पे अलग फॉर्मेटिंग है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग एक डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग पेज पर सेक्शन के हेल्प से अलग अलग फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक सेक्शन क्रिएट करके उस पर एक यूनिक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकें। क्लियर बेटा, ये पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक का है। चलिए हम कंट्रोल जेड करके अपने सारे डॉक्यूमेंट पहले जैसा बना लेते हैं, ठीक है। अभी हम जाते हैं अपने पैराग्राफ में, कंट्रोल ए, और यहां सर कॉलम को 1 देते हैं और पैराग्राफ यहां से हटा देते हैं, ठीक। तो पहले की तरह हमारा पैराग्राफ हो गया, सारे पेज, ठीक है बेटा। अब यहां पर जो नेक्स्ट हमारे पेज लेआउट में ऑप्शन है वो है लाइन नंबर, ठीक है। क्या है हमारे पास, लाइन नंबर है। तो हम चाहते हैं लाइन नंबर हमारा हमको मिले पेज में, यहाँ पे कंटिन्यूस कर देंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लाइन नंबर दिख रहा है। कंटिन्यूस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे देखिए 1 से लेके स्टार्ट हुआ, जहां पेज खत्म होगा 28, फिर यहाँ से कितना स्टार्ट हुआ 29, ठीक है। यहाँ को एक स्पेस होगा, इस वजह से यहाँ पर लाइन नंबर आ गया, ठीक है। 47 तक आपको लाइन दिखी, 2 पेज टोटल हमारे पास है। अब आपको हर पैराग्राफ से यहाँ पे देखिए लाइन नंबर आपको चाहिए कहां से, रीस्टार्ट ईच पेज, आपने क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ से 28 के बाद यहाँ से वापस हर पेज पे आपको नया लाइन नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस बार यहाँ पे देखिए इस पेज में 28 लाइन लिखी थी और इस पेज पे सिर्फ 19 लाइन लिखी है। तो हर पेज से एक नया नंबर, स्टार्ट ईच पेज, यानी कि हर पेज पे नया नंबर स्टार्ट होगा, ठीक है। क्लियर, नए तरीके से आपका नंबर, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद क्या कहा गया है लाइन नंबर में, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो सेक्शन बनाना पड़ेगा ना हमें, रीस्टार्ट ईच सेक्शन,
चलिए सेक्शन क्रिएट करते हैं। हम पहले हम चाहते हैं ये सेक्शन यहां से बने। सबसे पहले सेक्शन क्रिएट करें। नेक्स्ट पेज, सेक्शन पहले क्रिएट हो गया। उसके बाद ये सेक्शन यहां से क्रिएट करते हैं सेक्शन। अब पैराग्राफ पहले ऑन कर लेते हैं, कंट्रोल ए से पैराग्राफ ऑन कर लेते हैं। अब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो 19, ये देखिए सेक्शन से अब यहां पे जाते हैं, कंट्रोल ए, पेज लेआउट, लाइन नंबर, रीस्टार्ट ईच सेक्शन। देखते हैं 1 से लेकर 19 तक यहां से हमने सेक्शन स्टार्ट किया। फिर से देखिए 1 से लेकर ये देखिए 20 तक यहां पे गया, और फिर यहां से 1 से स्टार्ट हुआ। हर सेक्शन से यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? ठीक है बेटा, इस तरह से हमने पेज लेआउट के ये जो एलिमेंट थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक। याद रहेगा आपको। नाउ नेक्स्ट, इसी के बाद पेज लेआउट में लाइन नंबर के बाद हाइपरनेशन। अब हाइपरनेशन क्या होता है वो मैं समझाता हूं आपको। देखिए आप कभी एक स्टेटमेंट लिखने के लिए या पैराग्राफ जब लिखते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, एट द एंड ऑफ द लाइन जगह कम पड़ जाती है आपको पूरा प्रॉपर वर्ड लिखने के लिए। तो आप क्या करते हैं, पूरे वर्ड में आप कुछ टेक्स्ट लिखते हैं और फिर डैश लगा देते हैं, और फिर उसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज से। यहां पर भी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए करके यहां पर हाइपरनेशन ऑन कर देंगे ऑटोमेटिक। सो अभी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर डैश लगा हुआ है, डॉक्यूमेंट यहां से डैश करके MENT यहां पे स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन यू के बाद डैश लग गया, और फिर MENT यहाँ पे स्टार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक। उसी तरह से बहुत सारी जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए कंप्यूटर या कमांड, COM डैश MANDS कमांड्स, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखिए CUR फिर डैश RENT यहां से स्टार्ट किया, फिर सेलेक्टेड SE के बाद डैश लगा दिया, और फिर LECETD, दैट इज हाइपरनेशन, ठीक है। हाइपरनेशन करता क्या है, टर्न ऑन हाइपरनेशन विच अलाउज वर्ड टू ब्रेक लाइंस बिटवीन द सिलेबल्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। याद रहेगा आपको, ठीक है। ब्रेक करता है which allows would to break lines between the syllable of words। जो भी आपको वर्ड लिखना है उसके बीच में डैश अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। कहां पे जाना है, नन कर देंगे, हट जाएगा। या यहां पर जाके बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक हाइपरनेशन, ठीक है, हाइपरनेशन वर्ड्स इन कैप्स, बहुत सारे ऑप्शन यहां पर देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका अब है वो है पेज बैकग्राउंड में। पेज बैकग्राउंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, जो भी मैंने आपको करके दिखाया। पेज को सेलेक्ट करना है, वाटर मार्क अप्लाई करना है। तो वाटर मार्क में कहां पे जाना है आपको, कस्टम वाटर मार्क, यहाँ पे टेम्पलेट भी दिए हैं, जैसे लाइक कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, है ना। कॉन्फिडेंशियल को दो टाइप दिए हुए हैं, एक हमारा डायगोनल है, एक हमारा वर्टिकल है। यहाँ पे देखिए डू नॉट कॉपी का डायगोनल है, और ये क्या है, वर्टिकल है, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कॉन्फिडेंटल। तो अभी आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कॉन्फिडेंटल लिखा है, ठीक है। या फिर अगर आप अपना कुछ लिखना है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे जाएंगे, वाटरमार्क पे जाएंगे, और कस्टम वाटरमार्क, यहाँ पर आपको क्या करना है, टेक्स्ट वाटरमार्क में जहाँ कॉन्फिडेंशियल जहाँ टेक्स्ट लिखा वहां पे आप पब्लिक स्कूल लिख सकते हैं, कैपिटल में, प्रयाग पब्लिक स्कूल,
ठीक है। और यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कलर जो थोड़ा सा आपको दिखाई दे, ठीक है। डायगोनल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, हमने डायगोनल लिख दिया, ठीक है। एंड देन अप्लाई एंड देन ओके। सो अभी यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, टैलिक, बहुत सारे साइज अवेलेबल है यहाँ पर। थोड़ा सा ब्लैक कर दे ताकि आपको समझ में आए, दिखे, और अप्लाई एंड देन ओके, क्लोज। अभी आपको देखने को मिल रहा होगा प्रयाग पब्लिक स्कूल डायगोनल वे में यहाँ पे लिखा हुआ। ये आपका क्या है, वाटरमार्क। इसको हटाना है, वाटरमार्क को सिलेक्ट करिए और वाटरमार्क में जाइए, यहाँ पे रिमूव वाटरमार्क लिखा है, हट गया। ठीक उसी तरह से अगर आपको पेज को कलर करना है, पेज कलर के लिए क्या करेंगे आप, कट करिए पेज कलर, कोई भी पेज कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। कोई पेज कलर आप यहाँ से ले उठा सकते हैं, ठीक है बेटा। और इसके बाद बॉर्डर लगा सकते हैं यहाँ से, नन बॉक्स बॉर्डर है। और अब देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। बॉर्डर में सबसे पहले बॉक्स लगाया, उसमें क्या स्टाइल है, ठीक है। अलग अलग स्टाइल देख सकते हैं यहाँ पर, बॉर्डर की अलग अलग स्टाइल है। यहाँ पे 2 लाइन्स, ठीक है। अप्लाई कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं लाइन का, रेड कलर दे दिया हमने। यहाँ पे कितना थिक होना चाहिए वो सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ पर ओके कर दिया, सॉरी कंट्रोल जेड। पेज बॉर्डर, बॉक्स पे जाते हैं, कलर पे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद कितना थिक होना चाहिए ना, थिक कर ले लगा दिया। होल डॉक्यूमेंट क्लियर, होल डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा है ओके। तो देखिए होल डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो गया। बॉर्डर का कलर भी है, बॉर्डर को चेंज करना है, पेज बॉर्डर में जाइए, थिक करना है, थोड़ा सा थिक करना, थिक कर दीजिए, ठीक है। 2 लाइन्स में चाहिए, 2 लाइन्स में आपको मिल जाएगा होल डॉक्यूमेंट ओके। तो आप देख रहे हो इस तरह से पूरा 2 लाइन में आपको डॉक्यूमेंट, ठीक है बेटा। यहाँ से आपको पेज बॉर्डर में अलग अलग ऑप्शन, यहाँ पे आर्ट में जाकर आप आर्ट से कोई भी आर्टिस्टिक बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेगा, क्लियर। ये स्टार लगा दिया तो आपको चारों तरफ स्टार देखने को मिल रहा है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है इंडेंटेशन है। कैसे आपको पता चलेगा, पहला पैराग्राफ आपको लेफ्ट से कितना चाहिए बढ़ाते रहिएगा यहाँ से, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपके सारे जो टेक्स्ट है वो शिफ्ट होते रहेंगे, ठीक है। राइट से हटाना है, कम करना है तो राइट से हट जाएंगे, ठीक। देखिए लेफ्ट एंड राइट, क्लियर। ये देखिए राइट से वापस से उस वहीं पे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट में वापस से गए, किसी भी टॉप से, ठीक, टॉप से करना है, सेलेक्ट करिए इसको, टॉप से करना है तो देखिए टॉप से जा रहा है, स्पेस कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। लाइन बिटवीन चाहिए तो लाइन बिटवीन में भी आप स्पेस लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2 पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए वो भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए एक स्पेस कम करें, ये देखिए स्पेस कम हो गया, यहाँ से स्पेस कम हो रहा है, ठीक है। इंडेंटेशन है। तो बेटा ये आपका क्या था, पेज लेआउट टैब ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पेज लेआउट टूल्स, ओके। सो in the next video I will discuss with you about the mail merge option in the Word document, okay beta. So till then, thank you very much for watching my video. Keep learning, keep watching, keep sharing. Thank you student for watching it.